cement industry, okay, and UltraTech is one of the biggest company in this business, okay, fine. And if you look at Ultra, the stock is trading at 12,200, and today the stock has come down by 0.5% because of the impact which is happening because of the US sanctions and all. I mean the custom duty 25% levy. So yeah, whole of the markets should be down by now, okay. So the market cap is this. The P ratio is how much? What is the P ratio? 52. So that means this stock is trading 52 times than its earning per share, which means, okay. Similarly, when you look at price to book value, it is price to book value 5 times than its book value. So this is also another one of the valuation metrics, but this is hardly being used, okay. So similarly, you know, the industry P is how much? 48. The overall industry is trading at around 48.9 and UltraTech is trading at 52. So slightly costlier than the industry, okay, fine. It is trading almost at par with the industry, okay. So let's look at the industry. Who are the other players in this industry, okay? So the comparable companies within the industry are these. So there are, you know, about how many companies? There are about 7 companies, okay. UltraTech Chemicals, which is a cement company. Grasim Industries, which is also, you know, making cement, and then Ambuja Cements, Shree Cements, JK Synthetics, Dalmia, ACC. So these are the 7 companies which makes the cement pack, okay. Now if you look at, you know, the P ratios of all the companies and the median P ratio, which is around close to about 47.91. So this is the industry P ratio. We don't look at the average, we look at the median, which is a more representative sample, which is more reliable than the average, because average can be, a lot of outliers can be there which can distort the number. So the median is always considered to be a better average, I mean, than the simple average, okay. So if you find that most of the companies are trading in the vicinity of 40 and 50, okay, like UltraTech 52, Grasim 50, Ambuja is lower, okay. Shree Cement 98, so it is trading much higher than the industry. Then JK Synthetics 56, Dalmia 45, ACC is trading at a very low multiple of 14. So you will find some outliers like ACC and Shree Cement. If you exclude them, then all are trading around 47, 48. Is it okay? Is that the case? So now some companies are trading at a very high P multiples and some are trading at a very low P multiples. Now the question would be, why companies trade at a different multiples than the average? Of course, average is average, okay, but the companies can always be trading more than the average and less than the average. But if there is a big disparity, then a question mark comes, why, how the company is having different PE ratios which are not within the same range what they should be. Either these companies are very good, they have a great future than the other companies, because that's why they are trading at a higher PE multiple, because they are expected to make a huge profits in future, or can be, you know, or they can be just, you know, a very companies which are highly valued, okay, overvalued. हो सकता है पीछे अच्छा प्रॉफिट दिया हो बट अब नहीं दे रही है और ये जो है हाई पी मल्टीपल पे ओवर प्राइस्ड है. So either the share price can be overpriced because of the higher PE multiple, or if you look at it from the good sense, we can say the company has, people are buying it and pushing up the price. They are not worried about the price, whether it's overpriced, because they think the company has a great future and company is going to do very well. Now this P ratio is, what is the formula for P ratio? Market cap divided by net income, or market price divided by earning per share. Now the P ratios can, you know, this is a standard definition of the P ratio, okay. There is a numerator and a denominator. The numerator is always the price, the market price, okay, or the market cap. The numerator is EPS or net income. Do you agree with me? Now EPS, now people define P ratios in different ways. So first of all, you must know what does the P ratio means. You know, when you are talking to someone, you are talking to another analyst.
So he says, what is the P ratio you are using? What is your definition of the P ratio? Are we on the same page or you are using some more definition? Okay. Now let's see. The P ratios can be based on the current earning per share. That means the company has reported its numbers. Okay. The last audited numbers. So you pick up the EPS, you take the market price, divide by EPS, you get a price earning ratio. That is called the current P ratio. That is called the current P ratio. But that is not so relevant. The P ratio is something which is more relevant, is called the trailing P ratio. What is that? Trailing P ratio. Now the P ratio which is given here is nothing but the trailing P ratios. That means company's price divided by the company's last 12 months earning per share. पिछले 12 महीने का अर्निंग पर शेयर कितना है? ओके फाइन. अभी हम कौन से महीने में? अगस्त में आ गया, ऑलमोस्ट लाइक जुलाई हो गया. तो अप्रैल में जुलाई, अप्रैल में जून, current quarter, the company has already announced the result. Chances are the company has announced the result. Pick up the last 9 months audited, add the 3 months announced, calculate the earning per share, and calculate the P ratio. That's called the trailing P ratio. You don't have to do it, it's already calculated. How it is done, I'll just show you. If the company has already declared its profit for the last quarter, so it will be available here. Let's say profit loss account. Okay. So this is the profit loss account of the company. Fine. And the last number is called TTM. This is trailing 12 months. पिछले 12 महीने का क्या profit है company का. So the company has done a turnover of 75,000 crores, close to about 76,000 crores in the up to March. But the trailing 12 months is saying 77,000. That means the latest quarter which has been added to the 9 quarters earlier is showing that the company is growing. Is that okay? हम पिछले एक क्वार्टर का जो रिपोर्ट कर दिया है और उसके पिछले 3 क्वार्टर को ऐड कर दें तो ये फिगर आ जाएगी. कैसे आई? हम क्वार्टर में जाते हैं. अब क्या हो गया? यहां पर आपको जून क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है. प्लीज फोकस है. जून क्वार्टर का इस कंपनी ने अनाउंस कर दिया अपना रिजल्ट. नाउ ट्रेलिंग सेल्स. सो व्हाट वी डू? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस. सितंबर, दिसंबर, मार्च एंड जून, इन चारों को ऐड कर देंगे तो टीटीएम नंबर आ जाएगा. पिछले 4 क्वार्टर की कंपनी की जो सेल्स है उनको ऐड कर दिया. नहीं समझ में आया? इनको ऐड कीजिए. जस्ट ऐड देम. 15, 17, 23. डू इट ऑन अ कंप्यूटर. जस्ट कैलकुलेटर, ऐड इट. तो ये फिगर टीटीएम से मैच कर जाएगी. भाई क्या होता है कि जो एनालिस्ट होता है वो कहता है कि मुझे तो पिछले 12 महीने से मतलब है. अगर मैं मार्च तक लूंगा तो मेरे 3 महीने तो मैं इग्नोर कर रहा हूं जो कंपनी ने करे हैं. तो कंपनी ने जो कमाया है इस 3 महीने में वो मेरे लिए बहुत रेलिवेंट है. तो पिछले 9 महीने और इस साल के 3 महीने दोनों को ऐड कर दूंगा तो इट विल कम टू टीटीएम. आगे तो 77,000 ये आ गई फिगर टीटीएम. ठीक है. तो इसी प्रकार सारी लाइन बाय लाइन आइटम्स की मैं निकाल सकता हूं और टीटीएम नंबर निकाल सकता हूं. अगर मैं यहां जाता हूं और इसके नीचे जाता हूं और देखता हूं प्रॉफिट क्या हुआ कंपनी का, पिछले 12 महीने का क्या प्रॉफिट है. देखो कंपनी ने हम नीचे की फिगर देखते हैं. अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर, प्लीज लुक एट दिस. ईपीएस कहां गया? ईपीएस नंबर है 204 था पिछले साल. अभी कितना हो गया? 235. यानी पिछले साल का जो करंट रेशियो थी वो तो 204 के हिसाब से निकली हुई थी. एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस. अगर हमने पी रेशियो अगर हमने ट्रेलिंग पी रेशियो लेनी है तो हमें ये फिगर लेनी पड़ेगी 235, ना कि ये 204. बिकॉज ये पी मल्टीपल जो है ट्रेलिंग पी मल्टीपल बन जाएगा. यानी लेटेस्ट हो गया. भाई आप जब मकान खरीदने चाहते हो तो वो आपको प्राइस देखोगे ना. 3 महीने का प्राइस देखोगे तो क्या निकलेगा? उससे कुछ निकल नहीं सकता. और 3 महीने पहले तो वो होता है कि प्रॉपर्टी 5 करोड़ की थी, आज 6 करोड़ की हो गई है. तो आपको पुरानी प्राइस से क्या लेना? आपको नया जो अभी लेटेस्ट है वो लेना पड़ेगा टू कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी. इज दैट ओके? तो हमने क्या करा, ये टीटीएम नंबर लिया और ये वाला फिगर ले लिया हमने. इज दैट ओके? हैव यू अंडरस्टूड? एनीबडी हु हैज नॉट अंडरस्टूड हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द टीटीएम ईपीएस, प्लीज रेज योर हैंड्स.
सबको समझ आ गई? आपको आई? आपको समझ आ गई? टीटीएम कैसे निकला है अर्निंग पर शेयर? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप जवाब दोगे? आप आया समझ में नहीं आया? हाँ, समझ आ गया? गुड, बस समझ आ गया इतना काफ़ी है मेरे लिए, समझाने की जरूरत नहीं है। आपकी आवाज़ ही यहाँ तक पहुँच नहीं रही मेरे तक। कोई बात नहीं। कहाँ से हो आप? उत्तराखंड से? उत्तराखंड की तो आवाज़ें बुलंद होती हैं। कौन सी जगह से उत्तराखंड में? हाँ हाँ, देहरादून। देहरादून तो अच्छी जगह है, वहाँ तो लोग अच्छे रिष्ट पुष्ट होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो आवाज़ भी अच्छी होनी चाहिए। डर क्यों रहे हो आप? डरो मत। ओके फाइन। सो अर्निंग पर शेयर आ गया आपके पास? फाइन। सो दिस इज द लास्ट 12 मंथ्स अर्निंग पर शेयर। अच्छा, अब एक तो हो गया, दो वर्जन हमने देख लिए। एक तो करंट पी रेशो जो कैसे निकली, प्राइस डिवाइडेड बाय ये, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो आपको अगर यूज करना है तो ये यूज करना है, इस साइट ने भी ये यूज करा हुआ है। ओके, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, हम 1 ईयर फॉरवर्ड पी रेशो देखते हैं, उसे बोलते हैं फॉरवर्ड पी रेशो। जो थर्ड वर्जन है वो क्या है? फॉरवर्ड पी रेशो। अगले साल की पी रेशो आज ही निकाल लो, यानी अगले साल का एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर, और डिवाइड कर दो उसको करंट शेयर प्राइस से, तो हमारा क्या आ जाएगा? फॉरवर्ड पी। ओके, उसमें क्या है, कंपनी कह रहा है अभी तो महंगी लग रही है, लेकिन अगले साल ये कंपनी 100% प्रॉफिट कमा लेगी ज़्यादा। तो आज तो ये शेयर 99 दिखा रहा है पी रेशो, लेकिन हम अगले साल का प्रॉफिट लें तो ये 50 के आवाज से आ जाएगी। तो इसका मतलब महंगी नहीं है, बिकॉज दे आर शोइंग अ गुड परफॉर्मेंस, जबरदस्त परफॉर्मेंस शो करने वाली ये कंपनी। पीपल हैव डिस्काउंटेड द 1 ईयर डाउन द प्रॉफिट्स एंड बाइंग द शेयर टुडे। आज ही शेयर खरीद लिया, क्योंकि अगले साल तो प्रॉफिट डबल होने वाला है। अगर डबल होने वाला तो आज तो डबल पी रेशो में इंडस्ट्री से बिक रहा होगा ना वो। हैव यू गॉट इट? आज अगर श्री सीमेंट की पी रेशो 100 आ रही है, तो इसका मतलब इट शुड बी एक्सपेक्टेड द कंपनी इज गोइंग टू डबल इट्स प्रॉफिट द नेक्स्ट ईयर। पीपल आर बाइंग इट in anticipation that it is not very high value if you compare the next year's profit. अगर हम अगले साल के प्रॉफिट्स ले लें तो हमें ये शेयर महंगा नजर नहीं आएगा। इज दैट ओके? अगर ये पी रेशो आज 98 है श्री सीमेंट्स की, बट अगर मैं फॉरवर्ड पी रेशो के हिसाब से देखूं तो आई कैन जस्टिफाई माई प्राइस। इज दैट ओके? सो वी आर गोइंग टू क्लोज नाउ वेरी सून। 1 मिनट और। इज दिस क्लियर? तो अब मैंने क्या करा, अब आपने क्या करना है, एक साइट पे जाना है, मैं आपको दिखाता हूं। एक तो जाओ आप चैट जीपीटी पे और पूछो कि वाई श्री सीमेंट इज ट्रेडिंग एट अ हायर पी मल्टीपल देन द इंडस्ट्री, सो इट गिव यू द रीजन। ओके, नंबर 1 वो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, आप खुद भी देख लेना आपने। और सेकंड है, ये एक साइट है विच इज कॉल्ड ट्रेडिंग व्यू साइट, वेरी इंपॉर्टेंट साइट। ओके, सो यहां पर मैं इसका फोरकास्ट देख रहा हूं। ये फोरकास्ट बोल रहा है, सो देयर आर अबाउट 42 एनालिस्ट हु आर सेइंग, हु आर एक्चुअली ट्रैकिंग दिस शेयर। उनका व्यू है न्यूट्रल। वो कह रहे हैं ये शेयर प्राइस ऑलरेडी बहुत हायर है उनके हिसाब से, तो मत खरीदो, अगर है तो बने रहो, लेकिन खरीदने की जरूरत। इट्स नॉट सेइंग बाई रेटिंग, बिकॉज द शेयर प्राइस का टारगेट बता रहा है 31,000, अभी मिल रहा है 30,000, तो कोई ज्यादा ऊपर जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इट इज ट्रेडिंग एट अ हाई पी मल्टीपल, इट इज एक्सपेंसिव शेयर, इट्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड, फुली डिस्काउंटेड द फ्यूचर प्रॉफिट्स। सो नाउ अभी कोई स्कोप नहीं है इसे खरीदने का। तो हमें क्या करना पड़ता है इसके लिए? ये देखो यहां आ गया हमारा ईपीएस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस साइट पे आप घर पे जाएंगे और देखेंगे, यहां पर इसको एनुअल कर देंगे आप क्वार्टरली की जगह, और यहां देखेंगे बस लास्ट बिफोर वी क्लोज, तो ये बता रहा है ये अर्निंग पर शेयर कंपनी ने रिपोर्ट करा है श्री सीमेंट ने, और ये एनालिस्ट का व्यू था। एनालिस्ट बोल रहे थे इतना प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट डिक्लेयर करा इतना। तो आप देखोगे तो यू नो कंपनी हैज बीन डिक्लेयरिंग, इट इज शोइंग सम पॉजिटिव परसेंटेज। जो एनालिस्ट बोल रहे थे, मॉर्गन स्टैनली बोल रहा था, या यू नो अदर कंपनीज वर सेइंग दे हैव बीन डिक्लेयरिंग मोर प्रॉफिट्स देन व्हाट you know the company has reported more profits than the analyst, so it has given a positive surprise. So there is a positive surprise, except in 1 year there have been some positive surprises in the earning per share.
एंड अर्निंग पर शेयर इज गोइंग टू, अभी 322 है, अगले साल 522 हो जाएगा, फिर 600, फिर 800. सो कंपनी प्रॉफिट्स आर गोइंग टू जंप tremendously. That's why the share price has touched a rocketly to 99p ratio and that justifies कि कंपनी का आगे जाके अर्निंग पर शेयर, क्योंकि अभी अगर 300 आ रहा है, अगले में 522 हो जाएगा, तो करीब 70-80% तो प्रॉफिट जंप कर जाएगा. बट एक सिर्फ कैच है कि इससे पहले 623 था, तो इसका मतलब प्रॉफिट डिप हुआ और फिर बढ़ा और फिर और बढ़ेगा और बढ़ेगा. तो वर्स्ट टाइम ओवर हो गया, अब आगे फ्यूचर अच्छा है अगर हम इसको रीड करें. इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? तो आपको इस साइड पे जाके यहां पर सारी सीमेंट कंपनीज का देखना है. अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दूंगा